Good morning, dear students. So today in differential equation, we will discuss formation of differential equation. Formation of differential equation, that means we have to form a differential equation when the solution of differential equation is given. Fine. To understand more to this, I am taking one example. Let's say we have one equation y square equals to 4ax. Fine. This example I took. So here we have one arbitrary constant. This a is known as arbitrary constant. Arbitrary constant. Arbitrary constant. And this 4 is a plain constant. So first we have to always differentiate between arbitrary constant and constant. See, in any solution, these are y square 4x is a solution. In fact, it is equation of curve also. So in this, we must to know which are those arbitrary constant and which are constant. So this a is known as here arbitrary constant. This a can varies fine depending upon the equation. But this 4 is always fixed. So that is what we call as a plain constant. So आपको किसी भी इक्वेशन कर्व के आर्बिट्री कांस्टेंट जानने होंगे कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट उस कर्व में दी हुई है. यहाँ पे a, लेट्स से एक और एग्जांपल लिया मैंने y इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t. फाइन. तो यहाँ पे ये जो a है, a और b, these are two arbitrary constants. These are arbitrary constants. Fine. And this omega you have a constant. This you know in the wave equation of wave. So there you know that this omega is a fixed constant. But this a and b are arbitrary constant. तो ये arbitrary constant जाने का पर्पस ये है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने नंबर ऑफ arbitrary constants होंगे that many times you have to differentiate that curve. अभी इस कर्व में we have only one arbitrary constant. So इस कर्व को हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. So and then we have to eliminate the arbitrary constant. So at the end what we can say, when we have to form a differential equation, first we have to check how many arbitrary constant, and once we came to know our arbitrary constant that it is 1 or 2 or 3, that many times you have to differentiate and then you have to eliminate the arbitrary constant. So for this equation, look at this. We are differentiating first. So 2y dy by dx, and this is 4a is a constant and derivative of x is 1. So इतनी एक ही बार हमने इसको differentiate किया और इस arbitrary constant को हमने यहाँ से eliminate कर दिया. So a equals to 1 by 2 y dy by dx. अब ये वैल्यू जो a की है, this we will substitute in again in this equation 1. So therefore y square equals to 4 into x into a की जगह पे y by 2 dy by dx. अब इसको आप simplify कर लेते हैं. So that is y equals to 2x dy by dx. So this becomes a differential equation. 2x dy by dx minus y equals to 0. करेक्ट. या आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं या स्टैंडर्ड इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं. सो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया. इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें 2x dy by dx माइनस y इक्वल्स टू 0 मिल गया. सो समरी इज कि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट पहचानने हैं, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, और दैट मेनी टाइम्स यू हैव टू डिफरेंशिएट or then you have to eliminate the arbitrary constant. Once the differential equation is formed, there you don't have arbitrary constant in the equation. That is what you have to take care of while forming a differential equation. कि आपके differential equation में arbitrary constant नहीं होने चाहिए. ठीक है? Once you form the differential equation. Now we will discuss some more problems where how to form the differential equation.
For this, we will start the problems of your exercise. This is exercise 6.2 of your textbook. Exercise 6.2 हमारे टेक्स्ट बुक का है. पेज नंबर, this is 196, your M2, correct? So now we'll start some problems based on your textbook. Look at this. First question में there are questions. Obtain the differential equation by eliminating the arbitrary constant. First curve is x cube plus y cube equals to 4ax. Fine. x cube plus y cube equals to 4ax. अब इसे हमने इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है. While looking this equation, a we have looks, this is what arbitrary constant, this a. So एक ही arbitrary constant है, that means we have to differentiate once only. So now we will differentiate this, differentiating with respect to x. With respect to x. So क्या मिलेगा dear? 3x square plus 3y square dy by dx is equals to 4x. In fact 4a. 4a constant, x का डेरिवेटिव 1. फाइन. यहाँ से इस 4a की वैल्यू हम इस वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देन ऑटोमेटिकली a will be eliminated. So x cube plus y cube is equals to 4a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा डियर 3x square plus 3y square dy by dx into x. फाइन. अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं और वी कैन राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो व्हाट विल हैपन? लुक एट दिस. मल्टीप्लाई दिस टोटल. सो 3x cube plus 3y square x dy by dx माइनस x क्यूब इधर ले आइए, माइनस y क्यूब, and this is equal to 0. Fine. Now x cube you can subtract, so मेरे को मिल गया 2x cube plus 3xy square dy by dx minus y cube equals to 0. This is our required differential equation. Look at here, there is no a, there is no arbitrary constant. So this is the required differential equation. Right? So हमने यहाँ क्या देखा? एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट हमने वंस, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है और वहाँ से ये आर्बिट्री कांस्टेंट a को एलिमिनेट करना है. 4a इक्वल्स टू दिस केम और ये 4a की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया. एंड फाइनली वी हैव दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. फाइन. So एक arbitrary constant, once you have to differentiate, correct? Now we'll see the next situation. Second problem, I'm taking this is given ax square plus by square equals to 1. तो इक्वेशन को देखने से ही क्लियर हो रही है कि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b. सो अपने को कंपल्सरी दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो नाउ विल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. डिफरेंशिएशन हमेशा बोथ साइड्स ही होती है डियर. सो लुक एट दिस, व्हाट विल हैपन? 2ax आ जाएगा ये. दिस इज 2by इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू 0. 2 कॉमन ले लीजिए. सो यू हैव ax प्लस by dy by dx equals to 0. इसको आप इक्वेशन 1 कर सकते हैं. Now again we have to differentiate, क्योंकि दो आर्बिट्री है तो वापस डिफरेंशिएट करना होगा. So this is a plus b, यहाँ पे u into b होगा. y छोड़ा dy dx का, d2y dx स्क्वायर प्लस dy by dx रहने दिया एंड अगेन y का डेरिवेटिव dy by dx. dy by dx is equals to derivative of 0 is 0. फाइन. ये यहाँ तक क्लियर हुआ डियर. अब यहाँ से
हमने अगर a इक्वल्स टू निकाल लिया, दिस a इक्वल्स टू माइनस b टाइम्स ऑफ y d2y dx स्क्वायर एंड प्लस dy by dx का ये होल स्क्वायर हो गया. फाइन. नाउ दिस वैल्यू ऑफ a विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1. ठीक है. सो b और b आ जाएंगे, देन b वी कैन कैंसिल ऑल्सो. तो ये वैल्यू जो है दिस इक्वेशन 2 कर लो. इक्वेशन 2 की वैल्यू ऑफ a विल पुट इनटू a1. सो व्हाट विल हैपन, माइनस b इंटू एक्स कर दीजिए, या एक्स पहले भी लिख सकते थे, और ये टोटल y d2y dx स्क्वायर प्लस dy by dx होल स्क्वायर प्लस by इंटू dy by dx is equal to 0. Fine. So from here what we can do, we can take b and multiply. b से डिवाइड कर दीजिए या कॉमन लेके 0 पे भेजिए, एंड एट द एंड मल्टीप्लाई विथ माइनस ऑल्सो. ठीक है. तो ये हो जाएगा एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, माइनस से इंटू किया है माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0. Fine. So this way we can get the differential equation. Fine. This is our differential equation. So for the given curve we have this differential equation. Curve is ax square plus by square equals to 1. So what we have done, we have to differentiate twice. पहली बार डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. वी हैव 2ax plus 2by dy dx, then 2 we took common, ax plus by dy dx. Clear? Then again we differentiated equation 1. So this came a plus y, u into v रूल फॉलो किया यहाँ पे. यहाँ से आपने a निकाला माइनस b ऑफ दिस टोटल, और इस a की वैल्यू हमने वापस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी. And this way minus bxy d2y dx square, this came, and then finally we took b minus b common, या minus b से divide कर दिया, and this at the end we have equation we get. Clear? So now this way the differential equation we can form. Now we'll see the next situation. We have next curve, you can say y equals to a cos log x, a cos log x plus b sin log x. Fine. So again here it looks two arbitrary constant a and b, so we have to differentiate twice. So first we'll differentiate dy by dx. This is going to be a constant, cos log x is minus sin log x, and the derivative of log x is 1 by x, plus b constant, derivative of sin x is cos log x, and then derivative of log x is 1 by x. Fine. This came. Now what we'll do, we'll take x common and set this side, so this becomes x dy by dx. We have minus a sin log x and plus b cos log x. हमने x यहाँ से कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, जो मल्टीप्लाई हो गया x डी वाई डी एक्स. और हमें कंपलसरी 2 बार डिफरेंशिएट करना है. एक बार हमने यहाँ कर लिया, एंड अगेन विल हैव टू डिफरेंशिएट. तो यहाँ u इंटू वी है, सो अगेन विल डिफरेंशिएट. ठीक है. सो x इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इज इक्वल्स टू माइनस a, ये हो गया cos log x इंटू log x का 1 by x, प्लस b cos log x का डेरिवेटिव माइनस sin log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 by x. फाइन. ये क्लियर हो गया इसका डेरिवेटिव पूरे का.
अब यहाँ से वापस अपने को x कॉमन मिल रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लेफ्ट माइनस कॉमन ले लो आप ये, तो ये रह गया ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, बी साइन लॉग एक्स। फाइन, तो ये अपना टोटल क्या है, दिस इज वाई। देखो ये वापस y यहाँ क्रिएट हो गई। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स is equals to minus y. So now a and b arbitrary constant eliminated. This is what we are looking. So finally x square d2y dx square plus x dy by dx plus y equals to 0. This is our required differential equation for the given curve. ठीक है, तो ये एक बार फिर से देख लीजिए सारे स्टेप्स को। दो आर्बिट्री कांस्टेंट, सो यू हैव टू डिफरेंशिएट ट्वाइस। पहली बार डिफरेंशिएट ये हुआ a cos का माइनस साइन log x इज 1 बाई एक्स, b कांस्टेंट एज इट इज एज, डेरिवेटिव ऑफ साइन log x इज cos log x, फिर log x का 1 बाई एक्स। यहाँ से 1 बाई एक्स और ये 1 बाई एक्स कॉमन लेके हमने लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, वी हैव x डिवाइड x एंड दिस लेफ्ट। अगेन वी डिफरेंशिएटेड, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल फॉलो होगा, दिस इज u इंटू वी, एक्स छोड़ा डी वाई डी एक्स का डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स छोड़ा एक्स का 1। यहाँ पे आ जाइए माइनस ए कॉन्स्टेंट साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स एंड लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, फिर बी कॉन्स्टेंट कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स एंड 1 बाई एक्स। अगेन वी टुक 1 बाई एक्स कॉमन एंड सेंड इट दिस साइड, एक्स कॉमन लेके एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स डी वाई डी एक्स, यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया and this quantity is nothing but y, so this becomes y and then minus y को हमने इस साइड लिया and we have final differential equation where we don't have a and b arbitrary constant। यहाँ पे arbitrary constant a और b नहीं दिख रही है। This is what we do in formation of differential equation। arbitrary constant को आपको eliminate करना रहता है, ठीक है। Look at this some more situation। We have next problem, which is there is your fourth one from in your textbook. Given it is y square equals to x plus c whole cube. Fine. So again it looks here only one arbitrary constant a, तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करनी होगी, ठीक है, और उससे अपने को ये c को एलिमिनेट करना होगा। पहले बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दिस बिकम 2y dy by dx इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस c होल स्क्वायर, और फिर x का 1 हो गया डियर। यहाँ से आप x प्लस c क्या निकाल रहे हैं, x प्लस c होल स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी 2y अपॉन 3 dy by dx। Fine, this is what x plus c whole square। Now dear, अभी अपने को इसमें से c बाहर करने हैं, तो हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसमें अपने को ये x plus c का होल क्यू है तो y स्क्वायर आ रहा है, तो हमें होल क्यू प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसके लिए अपने को इसको होल क्यू करना होगा बोथ साइड, इस इक्वेशन को होल क्यू करेंगे। व्हाट विल हैपन, x plus c पे होल 6 आ गया, ये आ गया 2y by 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरे पे पावर होल क्यूब। फाइन, दिस केम। अब x प्लस 6 का 6 दिख रहा है, तो x प्लस 6 क्यू वाई स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर पे होल स्क्वायर, कैन वी से। फाइन, x प्लस सी होल क्यू इज वाई स्क्वायर, तो x प्लस सी होल 6 क्या दिखेगा, वाई स्क्वायर पे स्क्वायर दिखेगा। Fine, so that is why here y square पे square आ गया, and this is 8y cube 27 and dy by dx का ये whole cube हो गया, ठीक है। So look at this, arbitrary constant disappeared,
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गई। अब आप इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो दिस इज गोइंग टू बी y4, तो यहाँ से y आ गया, एंड दिस विल बी 27y कर लो, इधर आ गया 8 dy बाई डी एक्स होल क्यूब। फाइनली इसको आप ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिख लीजिए, 8 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब माइनस 27y equals to 0. This is what your required differential equation. Fine. Check it. एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि c एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। And now these are the steps. Go through quickly. Now we'll see the next problem. This is sixth one. फिफ्थ आप कर सकते हैं, जो मैं होमवर्क में दूंगा आपको करने। सिक्स्थ वन देखिए, इक्वेशन इज y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस बी। ठीक है, तो while looking this equation a and b टू आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है अपने को, तो अपने को दो बार डिफरेंशिएट करके इस a और b को एलिमिनेट करना होगा। So first we'll differentiating with respect to x both sides. So 2 times of y minus a, पावर रूल अप्लाई किया आपने, फिर y minus a का डेरिवेटिव हो गया dy by dx is equals to, here it will be 4, 1 minus 0, that is 4। ठीक है, so what we can say about y minus a, यहाँ से क्या निकाल लोगे, y minus a into dy by dx is equals to 2 लेफ्ट। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। लेट्स से वापस हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। किसको डियर, विल डिफरेंशिएट वंस अगेन टू आर इक्वेशन दिस वन। ठीक है, इसको वापस डिफरेंशिएट किया जाए, u इंटू वी रूल है। सो u रखिए, y माइनस ए u रखा, dy dx का डिफरेंशिएशन d2y dx स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स रहने दीजिए इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस ए, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स, और a का डेरिवेटिव 0 एंड 2 का डेरिवेटिव 0। फाइन, सो फ्रॉम दिस प्लेस what we came to know that y minus a into d2y dx square प्लस dy by dx का ये होल स्क्वायर हो गया, dy by dx whole square is equals to 0। Now this y minus a into d2y d, ये y minus a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। What we have y minus a here, y minus a here will be 2 into dy by dx। अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, so 2 upon dy by dx, 2 upon dy by dx into d2y by dx square plus dy by dx whole square is equals to 0। अब आप dy dx से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, so this is nothing but 2 d2y dx square, 2 d2y dx square plus dy by dx whole cube is equals to 0 हो जाएगा, dy dx उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। So this is what your required differential equation। ठीक है, so look at this, we have two arbitrary constants a and b, clear। तो अपने को दो बार डिफरेंशिएट किया करना पड़ा। From here we came to know y minus a dy dx equals to 2। फाइन, फिर से अगेन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि दो बार करना ही है अपने को डिफरेंशिएट।
ए एंड बी दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, सो यू इंटू रूल वी रूल फॉलो किया, एंड दिस केम y माइनस आई डी टू आई डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, और फिर ये y माइनस ए की वैल्यू यहाँ से 2 अपॉन डी वाई डी एक्स हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ वी टुक डी वाई डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी गेट द फाइनल इक्वेशन। फाइन, सो दिस इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। गो थ्रू करो, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो केयरफुली जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे दैट मेनी टाइम्स यू हैव टू डिफरेंशिएट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज 8th one. This is y equals to c1 e to the power 2x plus c2 e to the power 5x, correct? So straight away it looks कि c1 and c2 two arbitrary constants, so अपने को दो बार differentiate करना compulsory है। So first we'll differentiate, पहली बार differentiate कर लें, differentiating with respect to x both sides, so this will come dy by dx, c1 is constant, e to the power 2x का डेरिवेटिव e to power 2x और 2x का 2 आया, प्लस c2 constant, e to the power 5x is e to the power 5x and derivative of 5x is 5. Fine. Now this situation came, now again we'll have to differentiate, या इसको आप बराबर पहले लिख लो, 2c1 e to the power 2x plus 5c2 e to the power 5x, ठीक है। दिस इज व्हाट dy by dx। इसको आप इक्वेशन 1 कर दो, इसको आप इक्वेशन 2 कर लो। नाउ नेक्स्ट अगेन विल हैव टू डिफरेंशिएट, तो इसको वापस डिफरेंशिएट किया जाएगा, विल अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि अपने को दो बार डिफरेंशिएट करना ही है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये हो गया d2y dx स्क्वायर, एंड दिस इज 2c1 कांस्टेंट एंड अगेन e टू द पावर 2x इंटू 2 डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे 5c2 इंटू e टू द पावर 5x इंटू 5। इसको फाइनली आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, d2y dx स्क्वायर, this is 4c1 e to the power 2x and this is 25c2 e to the power 5x। इसको हमने इक्वेशन 3 ले लिया, ठीक है। सो वी हैव 1 2 and 3 इक्वेशन से c1 और c2 को एलिमिनेट करना है। पहले यहाँ तक क्लियर हो जाइए, डेरिवेटिव y को फर्स्ट डिफरेंशिएट किया, फिर सेकेंड d2y dx स्क्वायर किया। सो पहला इक्वेशन हमने ये रखा है y इक्वल्स टू c1 प्लस c2 e to our 5x, सेकेंड इक्वेशन वी हैव dy dx इक्वल्स टू दिस, एंड थर्ड वी हैव d2y dx स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। इस तीनों इक्वेशन से अपने को अब c1 c2 एलिमिनेट करने हैं। तो इस तरह के इक्वेशन जब हो तो क्या करते हैं आप, किसी एक कांस्टेंट को एलिमिनेट पहले करते हैं। तो अगर इस फर्स्ट और सेकंड में देखें, तो अगर मैं c2 को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो मुझे इक्वेशन 1 को 5 से इनटू करना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू सबट्रैक्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 को 5 से मैं इनटू कर दे रहा हूँ एंड देन वी सबट्रैक्ट। सो लुक एट दिस, अगर मैंने इक्वेशन 1 को 5 से इनटू किया, सो इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 5 कितना है, 5c1 e to the power 2x plus 5c2 e to the power 2x। ये इक्वेशन 1 हुआ, व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 5 e to the power 5x है, सॉरी। और ये सेकेंड इक्वेशन dy by dx इक्वल्स टू 2c1 e to the power 2x plus 5c2 e to the power 5x।
ठीक है, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके अब मैं सेकेंड के साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ. सो साइन चेंज, माइनस माइनस, सो ये गेट कैंसिल. सो अपने को मिल गया देयर 5y माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3c1 e टू द पावर 2x. ठीक है, इसको आप इक्वेशन 4 कर लीजिए. फाइन. सो हमने फर्स्ट क्या किया, इक्वेशन 1 को 5 से इंटू किया एंड 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 से. अब हम सेकेंड और थर्ड में, यहाँ पे मैंने C2 सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट और सेकेंड में, तो सेकेंड और थर्ड में भी C2 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो मैं C2 में अगर फिर से 5 इंटू कर दूँ तो ये 25 और ये 25. ठीक है, यहाँ मैं सेकेंड में 5 से इंटू कर दूँ तो ये 25 और थर्ड में भी 25 है, तो दोनों ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो C2 कैंसिल हो जाएगी. सो मैं अब 5 सेकेंड इक्वेशन में 5 से इंटू कर रहा हूँ. सो 5 dy dx, 5 dy by dx, then we have 10 equals to 10c1 e to the power 2x plus 25c2 e to the power 5x. ठीक है, और हमारा थर्ड इक्वेशन ये दी हुई थी d2y dx स्क्वायर, d2y dx स्क्वायर is equals to, this was 4c1 e to the power 2x and plus 25c2 e to the power 5x. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड को, सेकेंड को 5 से इंटू करने के बाद सेकेंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस गेट कैंसिल. सो लेफ्ट विथ 5 dy by dx into minus d2y dx square is equals to 6 times of c1 into e to the power 2x. ठीक है, अब इस 6c1 में हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके इसको 3c1 e to the power 2x बना दिया, और ये 3c1 e to the power 2x इक्वेशन 4 से मैं इस वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. करेक्ट. सो नाउ 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 5y minus dy dx, 5y minus dy by dx. Correct. So this way we can substitute, eliminated the c1 and c2. पहली वो दो इक्वेशन से अपने दो बार जो सब्ट्रैक्शन किया, दिस एंड हियर दिस, यहाँ से अपने को c2 एलिमिनेट हो गया, c1 लेफ्ट, और c1 को हमने यहाँ पे वापस 3c1 e to 2x जो अपने को फोर्थ इक्वेशन से दिख रहा है 5y minus dy by dx. सो आपने इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया. अब पूरे को इंटू कर लीजिए. दिस इज 5 dy by dx minus d2y dx square is equals to 10y minus 2 dy by dx. सबको एक साइड ले लो, पॉजिटिव कर लो d2y dx स्क्वायर को. सो d2y dx स्क्वायर माइनस उधर लिया आपने, ये हो गया डियर माइनस 7 dy by dx. This will be 7 dy by dx and plus 10y equals to 0. So this is the required differential equation of this equation. इसका एक और भी मेथड होता है जिसको डिटर्मिनेंट मेथड से की जाती है, वो भी आप कर सकते हैं, बट वो मेथड काफ़ी सभी बच्चों को क्लियर नहीं होती है. ये थोड़ा सा लेंदी रहता है बट श्योर शर्ट होता है कि आप कर सकते हैं. डिफरेंशिएशन मेथड इज ऑल्सो नॉट बैड, उससे भी आप कर सकते हो, टाइम उतना ही लगना है. ठीक है, सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड. इट्स ए इम्पॉर्टेंट वन, ये इम्पॉर्टेंट सम्स है, थोड़े से केयरफुली आप बनाएंगे इस सम को. 2 बार डिफरेंशिएट करना है और एक एक करके c1 c2 एलिमिनेट करना है. पहले आप c1 भी एलिमिनेट कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड से. मैंने c2 कर दिया तो c2 में 5 से इंटू कर, फर्स्ट इक्वेशन में 5 से इंटू किया, फाइन, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ ये मिला. फिर सेकंड में भी 5 से इंटू कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और वापस थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर दिया.
So we have 6c1 e to the power 2x और ऑलरेडी अपने को 3c1 e to the power 2x मिली हुई है in terms of y and dy dx. And finally we have substituted. After substitution, substitute करने के बाद value, this equation we have got. Find here. So this is what formation of differential equation के कुछ sums हैं. Look at the next situation. We have 10th one. 10th one is y equals to e to the power minus 2x into a cos x plus b sin x. ठीक है, this is what equation. Now we have to form the differential equation of this. So यहाँ पे भी a और b दो arbitrary constants हैं, तो we have to go twice derivative. ठीक है, so look at this. इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क ऐसे करने का, ये जो e to the power minus 2x है इसको पॉजिटिव बना के इधर ले आइए. ये हो गया e to the power 2x into y and this is a cos x plus b sin x. ये कर देने से क्या हुआ कि आपका राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. ठीक है, e to the power minus 2x को 1 upon e करके इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ वी विल डिफरेंशिएट with respect to x. And you know a and b दो है आर्बिट्री, तो दो बार डिफरेंशिएट करना ही होगा. So now look at this. यहाँ पे u into v रूल होगा. e to the power 2x as it is as y का डेरिवेटिव dy by dx प्लस y रहने देंगे. e to the power 2x is e to the power 2x into 2 is equals to minus a sin x. ठीक है, and plus b cos x. cos का डेरिवेटिव माइनस. ठीक है, नाउ अगेन विल डिफरेंशिएट. फिर से यहाँ u इंटू वी होगा, यहाँ भी u इंटू वी, दो बार डिफरेंशिएट करना ही है. e टू द पावर 2x, ये आ गया डेयर d2y dx स्क्वायर. मीन्स वापस हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस dy बाई dx आपने रखा. फिर e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू पावर 2x इंटू 2. फाइन, प्लस अब यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए. यहाँ पे u इंटू वी, y छोड़ा e टू द पावर 2x इज 2 प्लस e टू द पावर 2x रखा आपने, y का dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a cos x and this is minus b sin x, right hand side. क्लियर अप टू हियर. अब आप कलेक्ट कर लीजिए सारे d2y dx स्क्वायर को एक जगह. सो वी विल हैव, लुक एट दिस, e to the power 2x dy dx कॉमन भी दिख रहा है अपने को, e to the power 2x फ्रॉम एवरीवेयर. सो पहले e to the power 2x कॉमन देखिए, तो ये कितना मिल गया अपने को, d2y dx स्क्वायर and this is 2 times of this dy dx and 2 times of this dy dx. So this is 4 dy by dx. Fine. And left with 4y plus 4y. और ये अपना क्या है डियर, माइनस कॉमन लिया, a cos x sin x is e to the power 2x into y, e to the power 2x into y. ठीक है, look at this. यहाँ से a cos x b sin x अपने को क्या है, e to the power 2x into y. now e to the power 2x get cancel, सारे टर्म को इस साइड ले लो आप, तो d2y dx स्क्वायर प्लस 4 dy by dx एंड ये माइनस y इधर आ गया तो प्लस 5y इक्वल्स टू 0. ठीक है, e to the power 2x and e to the power 2x get cancel, माइनस y को हमने इस साइड लिया, and this is what your required differential equation.
ठीक है. So A and B are arbitrary constants. So you have to differentiate twice. We did. Before doing differentiation, what we did, we take this e to the power minus 2x into left hand side. तो ये 1 upon a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके ये e to our 2x into y आ गया. And then a cos x plus b sin x. Now you differentiate u into v rule. And then everything is clear in front of you. So there you have to practice such problems. Correct? ऐसे प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करेंगे, श्योरली यू विल गेट आंसर. थोड़े से टेक्निकली आपको स्मार्ट होना था इस सम के लिए कि ई टू आर 2xy को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ई टू आर माइनस 2x को, एंड देन वी स्टार्टेड डिफरेंशिएटिंग. और 2 बार कंपल्सरी डिफरेंशिएट किया हमने, सो दैट ए एंड बी एलिमिनेटेड. Fine. So we have seen these sums. Now we'll move to our some word problems जो आपके question number 2 में है. This is given form the differential equation. Form the differential equation of family of lines having intercepts A and B on the coordinate axes, respectively. Correct? So what we have to do, we have to form the differential equation of family of lines having intercepts A and B on the coordinate axes. So we know that formula. What is that? The equation of line having intercept A and B on the coordinate axes is, equation of that line will be what? X by A plus Y by B equals to 1. That we know. X by A plus Y by B equals to 1. यही हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं आप इसको. ठीक है? लाइन मेक्स A and B on the X and Y axis. Correct? Intercept form of a straight line. This is what? X by A plus Y by B equals to 1. This is the line. So while looking this equation, we observe that A and B, 2 arbitrary constants. So we have to differentiate twice. पहली बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट विल हैपन, 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन a प्लस 1 बाई b कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0. फाइन. अब यहाँ से 1 बाई b dy बाई dx इक्वल्स टू, वी कैन राइट माइनस 1 बाई a, एंड देयरफॉर dy बाई dx आप क्या लिख सकते हो, b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज माइनस b बाई a. करेक्ट. अब अपने को एक बार और डेरिवेटिव करना है क्योंकि a एंड b 2 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं. देयरफॉर d2y dx स्क्वायर, दिस बिकम्स, इट इज प्योरली कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 हो गया. सो दिस इज व्हाट आर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. So a straight line making double intercept form with the coordinate axes, उसका differential equation will be d2y dx square equals to 0. Clear? Now look at the next situation. ये वर्ड प्रॉब्लम है, इससे भी चांसेस होती है एग्जाम में प्रॉब्लम आने की. So let's look at the next one. Form the differential equation. All parabolas having length of lattice rectum
4a and axis is axis is parallel to the x-axis, parallel to the x-axis. Clear? So what we have to do, form the differential equation of all parabolas having length of lattice rectum 4a and an axis is parallel to the x-axis. Okay? So if I'll show you the diagram of this, how the parabola will be there. So ये parabola shifted parabola होगी, ठीक है? Like this, it will be, इसका focus हमने h और k लिया है यहाँ पे, means vertex. ये मैंने h और k ले लिया है, shifted है ये, क्योंकि axis is parallel to x axis बोली गई है. And this is what? Length of lattice rectum. This is x axis, y 0. Fine. This point I took a. क्लियर? तो इस फॉर्म में पैराबोला दिखेगी. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? एच के वी द वर्टेक्स, ये लिया. तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ये अपना जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y minus k square is equals to 4a into x minus h, correct? Where h and k are arbitrary constant, where h, k are arbitrary constants. ये arbitrary constants हो गए इसके, ठीक है, क्योंकि h और k वैरी करता रहेगा constant. फाइन. ए हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a फिक्स बताई गई है, ठीक है ना. बट एच और के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. दैट मीन्स वी हैव टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, सो वी हैव टू डिफरेंशिएट ट्वाइस ओनली. सो फर्स्ट विल डिफरेंशिएट दिस, देन डिफरेंशिएट कर लें इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ y माइनस के एंड देन y माइनस के का डेरिवेटिव dy by dx is equals to 4a, correct? Therefore आप यहाँ से y minus k dy by dx we can get, क्या मिल जाएगा? 2 से डिवाइड होगा तो this is 2a, ठीक है. Now again we'll have to differentiate this, क्योंकि 2 बार differentiate करना ही है. So again we will differentiate with respect to x. So u into v follow होगा dear, y minus k dy dx is d2y dx square plus dy by dx as it is as, और y minus k का डेरिवेटिव हो गया dy by dx and derivative of 2a is 0. फाइन. सो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस y minus k की वैल्यू डाल दें यहाँ से, इस इक्वेशन से. y minus k is 2a upon dy by dx, ये वैल्यू आप यहाँ डाल सकते हैं, 2a upon dy by dx of d2y dx square plus dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. So this is going to be finally 2a d2y dx square plus dy by dx whole cube, and 0 upon the 0 into dy by dx is 0. Fine. So this is what our required differential equation. H and k eliminated. We came to know h and k are 2 arbitrary constants for this. ठीक है. इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारा जनरल फॉर्म में आएगा डियर, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस h. h के क्या है? वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, एंड दीज आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि यही कांस्टेंट वैरी हो सकती है.
ए हमारा फिक्स दिया हुआ है, लेंथ ऑफ टेट्रासेक्टम सेक्टम 4a। सो हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया एंड वी हैव एलिमिनेटेड h and k. Now look at the next situation. We have next problem. It is find the differential equation. Fourth one, find the differential equation differential equation of the ellipse whose major axis is twice its minor axis Fine. Major axis क्या है? Twice its minor axis. So we have to find the differential equation of the ellipse whose major axis is twice its minor axis. Fine. So how we'll proceed? अपने को पता है 2a and 2b be major and minor axis. So let 2a and 2b be lengths of major and minor axis of the ellipse. Correct? So according to question, what it is given, that major axis is twice its minor axis, means 2a equals to 2 times of 2b. Therefore we can say a equals to 2b. Okay, cancel हुआ 2 2. Now equation of ellipse क्या है dear? Equation of ellipse, we know equation of ellipse is x square by a square plus y square by b square equals to 1. Fine. अब मैं according to question a equals to 2b substitute कर दूँ. So we have x square by 4b square plus y square upon b square equals to 1. ठीक है, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 4b स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, एलसीएम लिया तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर. ठीक है, दिस इज व्हाट आवर इक्वेशन. अब यहाँ पे हमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है विच इज b. आर्बिट्री कांस्टेंट हमें एक ही दिख रही है विच इज b. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट वंस ओनली. अब इसको मैं यहाँ से डिफरेंशिएट कर देता हूँ. दिस इज 2x differentiating with respect to x. So 2x plus 8y dy by dx is equals to 0. This we will get. 4b square is a constant हो गया, तो derivative differentiation 0 हो गया. So finally x plus 4y dy by dx is equal to 0. This is what our differential equation of this problem. Find the differential equation of the ellipse whose major axis is twice its minor axis. So मैंने let 2a 2b be length of major and minor axis of the ellipse लिया. According to question, 2a equals to 2 times of 2b. So a equals to 2b came, and then we know that equation of ellipse is this one. Then a की value substitute किया, which will become 4b square, take an LCM, and then we differentiated once only because it has only one arbitrary constant which is b. And finally we have this differential equation.
Now see the last problem of this differential equation. This question is, thus you can go with another sum which is sixth one also, not so difficult. You can do it 60 कर लेते हैं. Look at this. Find the differential equation. Find the differential equation of all circles having radius 9 and center at h key, ठीक है. Find the differential equation of all circles having radius 9 and center at h key. Radius is fixed 9 here and center कहाँ कह रहा है, at h key. इसके हमें differential equation चाहिए. तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी. रेडियस 9 लिया है तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h square plus y minus k square whole square and which is 9 square. This is nothing but 81. इसको इक्वेशन 1 कर लिया. So यहाँ पे मैं h और k दो arbitrary constants हैं. So you have to differentiate twice. So we'll start differentiating this equation 1. Differentiating with respect to x. So 2 times of x minus h into x का derivative 1 हो गया. 2 times of y minus k and the derivative of y minus k is dy by dx. K का derivative 0 and this is also 0. So we have x minus h plus y minus k into dy by dx. This came equal to 0. Fine. इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया. दिस इज 1 and 2. अभी वापस इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, क्योंकि h और k दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो इसको वापस डिफरेंशिएट कर लीजिए. तो दिस इज 1 प्लस यहाँ पे u इंटू वी होगा y माइनस के इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऐसे ही रखा. y माइनस के का डेरिवेटिव dy by dx. K is 0 and derivative 0 is 0. Fine. So look at this situation. यहाँ से मैं y minus k कैलकुलेट अगर करूँ तो क्या मिलेगा अपने को, y minus k equals to, wait इसको बराबर लिख लेता हूँ. y minus k equals to will go first. So अगर मैं डायरेक्टली y माइनस के यहाँ से लूँ तो ये होगा डेयर, दिस इज नथिंग बट -1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा y माइनस के. अब इस y माइनस के को मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, विल सब्स्टिट्यूट इन इस y माइनस के की वैल्यू x माइनस एच वाई माइनस के है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं. ठीक है. सो वंस यू सब्स्टिट्यूट इन दिस, सो व्हाट विल हैपन, लुक एट दिस. इनफैक्ट ये x माइनस एच से भी आप निकाल सकते हो. y माइनस के यहाँ पे ये है तो आप x माइनस एच इसको कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पे x माइनस एच इज y माइनस के इंटू डी वाई डी एक्स. यहाँ से भी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप ऐसा करें कि x माइनस एच फ्रॉम 2 से ले लीजिए. यहाँ से आप x माइनस एच की वैल्यू ये हो गई, x माइनस एच इज माइनस y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है.
अब इस y माइनस के की जगह पे ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x माइनस एच की वैल्यू आप वहाँ डाल दीजिए, करेक्ट। ये तो y माइनस के आ गया, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं x माइनस एच की ये वैल्यू, होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये वैल्यू पे डालते हैं इक्वेशन 1 पे, ठीक है। x माइनस एच की वैल्यू तो ये हो जाएगी y माइनस के स्क्वायर dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, ठीक है। अब यहाँ से आप y माइनस के होल स्क्वायर कॉमन निकाल के उधर भी भेज सकते हैं, तो डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू ये आ गया 81 अपॉन y माइनस के होल स्क्वायर, ठीक है। दिस के अब ये y माइनस के की वैल्यू ये जो है ये अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फाइनली। लुक एट दिस, so this is nothing but dy by dx whole square plus 1 81 और y माइनस के का होल स्क्वायर तो फ्लिप करेगा, ये ऊपर हो जाएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, नीचे आ गया डेयर माइनस माइनस आप कॉमन ले लिए उसका स्क्वायर कर दिए तो ये 1 प्लस ही हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होल डी वाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर है, फिर इसका भी होल स्क्वायर, फाइन। सो दिस वे व्हाट वी कैन राइट फाइनली, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए दी तो 81 डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और इस पर ये पावर 3 हो गया। So this is what your required differential equation. Fine, understood. So इस तरह के सम में थोड़ा केयरफुली कीजिए। h और k दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, सेंटर रेडियस फॉर्म, इसको आप सेंटर रेडियस फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म which I have written here. We have two arbitrary constants h and k, correct, and then we differentiated twice, एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ से x माइनस एच की ये वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाला, y माइनस के की वैल्यू भी एंड में पुट किया। लुक एट दिस, y माइनस के की वैल्यू हमने इस पार्ट पे जाके सब्स्टिट्यूट किया। So dear, this is all about your formation of differential equation. थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, surely you will get confidence in forming a differential equation. Now I am giving you some problems जो आप homework में try करेंगे, not more than 3 sums, because उससे ज़्यादा आप करते भी नहीं हैं, ठीक है। तो आप 3 sums बहुत है आपके लिए, कोई 24 hours में if you do 3 sums that would be sufficient. एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका, है ना। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर 3 सम्स एज ए होमवर्क जो आप ट्राई करें। इफ़ यू वांट टू सो इन ग्रुप इट इज़ ओके, अदरवाइज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मैं ढोल तबला बजा के नहीं आपको स्वागत कर सकता हूँ, है ना। आप बनाएंगे तो इट्स योर कॉल, आप अच्छे से समझेंगे सो देन इट इज़ योर कॉल डियर। एग्ज़ाम में आपको ही बेनिफिट होगा, और साइंस में रहना है तो ये कंपलसरी करना ही पड़ेगा ना, देयर इज़ नो एक्सक्यूज, समझना ही पड़ेगा। फाइन, सो एनी डाउट इन दिस, अगर इस पूरी वीडियो में आपको लगे तो लेट मी नो। फाइन, सो दिस वन इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द solution of differential equation here. So go through this video carefully, one by one step. Fine, and any doubt let me know. So thank you very much.